Praise the name of Jesus. Good morning to all of you. Thank you for this day. We are in the 26th day of the School of Holy Spirit. So God is so gracious unto us, so loving to us. See how Holy Spirit is carrying us. Every day He is giving us new word, new teaching, new revelation. So God is good. Amen. आइए थोड़ी देर हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें. और हला बाबा शिंदारी दाले ने वे शिखेरे देले लेबे रीला ना वशंदुरे री बाबा ला ला बा और हला ना खबीरी दिली नबे रबला नहंदरा बना बाबा Shakere delena kalina hakbari delina ba Shindoro dolona ba bari dalene kelena hakbari delene bi Shindoro dolona kalena ba Ramra riklava lava Shindoro dolona hakbari Rikaliha bari dalina hakbari Shakrodolona hakbaro Shabarida lahala labi Ribalina hakbaro Shokaro hondoro kalina hakbare Kerebelina hakbara Shikorodolona hakbare dinin daridalina ba Rabana handare delena kalina hakbara Korebelena kalina vishidorodolona kolona bubu Rabrari klavala bashandari ridalene kelene vishidorodolona kalina ba Hora holona handari dalina be shikere delena kalina be Ve hendari dalala bashakro rodolo ravana ba Riba lavana khabari delena akbari kire bele dene ke shokere delena khali ridalana bashanduro dulunu horolono khalina akbara riba ba ridalana khalene be Hibere delene kilina akbaro shokoro dulunu kholono boshi brava Rabra baba baba horido robaro ramre delene kilina be Shekere delena ba rida la la ha baba ridelena khaline hekbere kere belena khalina hakbaro dolona hakbara kira baba ba horidolo role le be shidari dalina ba riba baba horidolona khalina hakbare Shikaradani kilina hakbare ridalene kelina hakbara Kira valona baba shindoro ridelene kiline bi Ribrari klavala lava shandaradani kilina hakbara Kira valana khalene kelene kelina bosho doro dolone bi Rabro robro ribro riklavala lava shindara bana hakbalona bi Kibere delena khalena hakbara Shakravana hakbaro Kore belena hekbedi Kiri dilina hakbara Kira valana hakbare Kere belena khalono hakbaro dolono kholono bi Rabro robro riklovolo bushido dolono handari dalina hakbara Thank you, Lord Almighty. I thank you. I praise you, I welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, thank you so much. You are in our midst, Holy Spirit. We honor you, we glorify you, we thank you, we obey you, Lord, Holy Spirit. Thank you for loving us. Thank you for helping us, Holy Spirit. Lord, Holy Spirit, help us. Help us. We want to worship Jesus. Jesus, my Lord, I worship you. Oh, I worship you. I exalt your precious name into the high, Lord. Your name is so precious, Lord. So wonderful. You are the wonder of God. Thank you. Hosanna,
Hosanna, Hosanna in the highest. Gaye. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with the heart full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name with the heart full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Jesus, Jesus, Jesus is the Lord of Lords. Jesus, Jesus, Jesus is the Lord of Lords. Lord, we lift up your name with the heart full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Aurala Visha Korodulava Ribala Hambari Dalehibiri Shandroro Dolonacha Rabrari Klavala Lava Shakhro Dini Hambere Delehebini Sibere Delena Khalina Hakbari Dalina Hikebe Sibaro Dolona Hakbara Kibara la 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 vashandari dale bene virjindoro rabrori klubo shakoro dolona khari bane kebela. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your kindness. Thank you for your mercy, Lord. Thank you for your grace, Jesus. Your grace is sufficient for us, Lord. Thank you for this school of the Holy Spirit. Thank you for this 26th day of the school of Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you for this batch, Lord. I pray and I bless all the 45 students, Lord, in your precious name. Thank you, Holy Spirit. You are covering them. They are all under your shadow. They are all under your almighty hand. Yes, yes, Holy Spirit, thank you. Now you teach us, Holy Spirit. In Jesus' name we ask. Amen. Okay, shall we start our teaching? The same topic, what we have taken yesterday. 7 spirits of the God. And I spoken that divine secret to the miracle is when the Spirit manifests in all the 7 spirits. And we have given all the 7 name of the manifestation of the Spirit from Isaiah 11 verse 2. Spirit of the Lord, Spirit of the wisdom, Spirit of the understanding, Spirit of the counsel, Spirit of might, and Spirit of knowledge. And 7th one is Spirit of the fear of the Lord.
So today we will see under this head the spirit of the fear of the Lord. You can write the heading, the spirit of the fear of the Lord. Amen. Thank you, Holy Spirit. परमेश्वर के भय की आत्मा। अगर आप आज देखें अपने चारों ओर, इवन अपने चर्च में भी, आप पाएंगे कि आज लोगों के अंदर परमेश्वर का भय हट गया है। इनडायरेक्टली दे आर सेइंग वी डोंट नीड यू। सबने अपना अपना एजेंडा ले लिया है, अपना अपना तरीका ले लिया है। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर होता है और वो अपने आत्मा को मैनिफेस्ट करता है, तब हमारे अंदर परिपूर्णता आती है। ये हमने कल सीखा, चर्चा की। और 7 पॉइंट्स मैंने बोले थे, 7 प्रकार की आत्माएं, जिसमें ये लास्ट वन है परमेश्वर के भय की आत्मा। अगर आप इसका तीसरा पद पढ़ेंगे, यशायाह 11:3, वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का भय मानना सुगंध सा लगता था। वहां पर ऐसा कुछ लिखा है कि यहोवा का भय मानना उसे सुगंध सा लगता था। 7 स्पिरिट वहां मौजूद हैं, 7 प्रकार का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो सबसे ज्यादा भाता था वो था यहोवा का भय उसे सुगंध सा भाएगा। एंड हिज डिलाइट shall be in the fear of the Lord. It is written, Isaiah 11:3, and his delight shall be in the fear of the Lord. Isaiah 66:2, वहां पर लिखा है कि आखिरी चैप्टर यशायाह का, कि उसमें प्रभु का वचन इस प्रकार से है कि आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। परमेश्वर की वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी हैं। परंतु, ध्यान से सुनिएगा, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। Heaven is my throne, earth is my footstool. What is the house that you would build for me? And what is the place of my rest? All these things my hand has made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. हेलो, आपने सुना परमेश्वर क्या कहते हैं? पुराने नियम में कह रहे हैं, जो मेरा वचन सुनकर थरथराएगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आप परमेश्वर के वचन का भी भय मानेंगे, वचन को सुनकर थरथराएंगे और कांपेंगे। आज लोग वचन को बहुत हल्के से लेते हैं, सुना अनसुना कर देते हैं, वैल्यू नहीं देते। दैट्स वाई जो परमेश्वर की निगाहें हमारी ओर नहीं लगती और हमें स्ट्रगल करना पड़ता है।
यीशु मसीह जब इस देह में थे, इस धरती पर चल रहे थे, तो बाइबल कहती है पुत्र होने पर भी, हेलो, इब्रानियों 5 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7 and 8, वहां लिखा है कि यीशु मसीह पुत्र होने के बावजूद उन्होंने आज्ञा मानना दुख उठा उठाकर सीखा। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिन में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार के, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। और बाइबल कहती है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence. So जो reverence है, nowadays the people don't have the reverence of God, neither the reverence of the word of God. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. If you have the fear of the Lord, if you have the reverence of the Lord, then only you will obey the word of God. This is the main thing. Why people are not in obedience, why people are not willingly obey the commandment, the word of God, because they don't have the reverence of God and the reverence of the word of God. That's the main reason. And that's why people are suffering, body of Christ is suffering, churches are suffering, believers are suffering, even the ministers, leaders are suffering. This is the main thing. And I believe and I suggest that when we have the testimony that the Spirit of the Lord is with us, in us, so we should always humble and ask the Holy Spirit, Holy Spirit, teach us to live in the fear of the Lord. Teach us to obey the word of God. Bible says in Ecclesiastes 12th chapter, verse 12. Yes, सबोपदेशक की पुस्तक उसके 12वां अध्याय, ये उसने लिखी जिसे गिफ्ट मिला था, गिफ्टेड मैन, गिफ्ट ऑफ विजडम, Solomon, King Solomon. Oh, and he wrote this thing after his entire experience of his life. And the last he wrote, chapter 12, verse 13. Yes, 12, verse 13. The end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। संपूर्ण कर्तव्य ही यही है। हिंदी बाइबल कहती है भजन 111 के 9वें पद में, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। Holy and awesome is His name.
उसका भय मानना है। इवन जब हम वर्शिप करते हैं, उसकी आराधना में आते हैं, बाइबल कहती है साम 96:9 में, पवित्रता से सुबयान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। दिस इज रिटन, ट्रेम्बल बिफोर हिम ऑल द अर्थ। व्हाट आई वांट टू से, we must have the respect and the honor for the Almighty God, our Father, because Bible says He is reverend, वो भय योग्य परमेश्वर है। So when this spirit in action, or when this spirit manifests, people have a reverence for God and for the things of the God. When the Spirit of the Lord is moving, have reverence. जब प्रभु का आत्मा मूव कर रहा है तो आप बड़े रिस्पेक्ट और आदर के साथ रहें और उसका मान सम्मान करें। Church of Corinthian have the gifts of the Holy Spirit, but no fear, no reverence. That's why it is written in 1 Corinthians 11:20-22, 1 Corinthians 5:1, 1 Corinthians 3:3-4. They are quarreling for the food, committing sin, envy, strife, division, उनमें पक्षपात, उनमें बंटवारा, उनमें लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार जैसा पाप, झूठ, हेरा फेरी वाली बातें, ये सब बातें उनमें थी। जबकि दूसरी तरफ गिफ्ट में वो लोग मूव कर रहे थे। You and I must have the reverence for spiritual things. God has given you the gifts and the fruits. You are moving, operating in them. Thank God for all this. But at the same time, you must be humble and reverence for the spiritual things. जो आत्मिक आशीषें मिली हैं, जो दान वरदान मिले हैं, उनका मान सम्मान करें और परमेश्वर के भय में रहें। Submit and be humble. By this spirit, you can produce humility. When this spirit is moving, manifesting, it produce humility in you. You will speak the right word because you recognize that Holy Spirit is here and you will speak right word. Paul says, submitting yourself one to another in the fear of the Lord. Peter said in 1 Peter 5:5-6, humble yourself in the sight of the Lord, under the mighty hand of the Lord, and He will exalt you. So yield yourself to the Spirit. He will lead you to walk in the reverence of humility. So अपने आप को नम्र दीन बना के, छोटा बना के, हमेशा परमेश्वर की अधीनता में रहें, उसके बलवंत हाथों के नीचे रहें, उसका भय मानते रहें, उसके वचन के सुनकर भय मानते रहें। परमेश्वर है जो आपको बढ़ाएगा और उचित समय पर ऊंचा उठाएगा। वो घमंडी का सामना करेगा लेकिन नम्र और दीन को शिरोमणि बनाएंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। दिस इज God's time for us. God has given us 31 days to understand, to learn, to know more and more for the Holy Spirit, the third person of Trinity. तो आपने देखा होगा, आपका विश्वास लेवल अब बढ़ा होगा। स्पिरिचुअली जो लोग कोल्ड पीपुल हैं, ठंडे पड़े हुए थे, अभी उनमें पवित्र आत्मा की थोड़ी गर्माहट आई होगी। They will rise. How it will done? ये सब कैसे होगा, कैसे आप रेज अप होंगे? It's by the power of Holy Spirit.
So we should actually build the stage for God. First in our life, then family, then church. If you really want to meet the Lord of Lords and the King of Kings, the creator of the universe, to visit you, you have to make some arrangement. जब कोई बड़ा व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो आप कोई तैयारी करते हैं. उसी प्रकार यदि आप अपने प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा को चाहते हैं वो आपको विजिट करे, उस सारे ब्रह्मांड को जो कंट्रोल कर रहा है आपको विजिट करे, तो आपको भी कुछ तैयारी, कुछ अरेंजमेंट करने होंगे. तो वन अरेंजमेंट इज द फियर ऑफ द लॉर्ड. आपको अपने भीतर, अपनी आत्मा में जो तैयारी करनी है, वो अरेंजमेंट, वो तैयारी किया है कि परमेश्वर का भय मान के रहें. परमेश्वर के भय में आदर मान सम्मान होता है. अनलेस यू बिल्ड द स्टेज ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड in your heart, the holy respect of God, God will never visit you. जब तक कि आप अपने हृदय में परमेश्वर के लिए उसके भय का सिंहासन नहीं सजाते, पवित्र आदर मान सम्मान का सिंहासन अपने दिल में नहीं सजाते, तो फिर वो आपको विजिट नहीं करेगा. मलाकी 1:6 में लिखा है, आई एम द फादर देन वेयर इज माई रिस्पेक्ट. अगर मैं पिता हूं तो मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरा आदर सम्मान कहां है? अगर आप इधर उधर छोटी मोटी ब्लेसिंग ले रहे हैं और खुश हैं, तो ये वो बात नहीं है. मैं परमानेंट वाली बात करने की कोशिश कर रहा हूं. जस्ट यू विल फील स्मॉल ब्लेसिंग हियर एंड देयर, लिटिल हार्ट ब्लेसिंग, दैट्स ऑल. दिस इज द थिंग विच इज मिसिंग इन आवर लाइफ. Even in the ministry, though the people are preaching the gospel, but they are lacking this area. So we have to work hard in this area. We have to give respect, honor, and reverence to the Lord. And when it will do, when the Holy Spirit manifests the spirit of the fear of the Lord, जब प्रभु का आत्मा परमेश्वर की भय की आत्मा को का प्रकटीकरण करेगा, तब हमारे अंदर से विलिंगली ओबीडियंसी, रेस्पेक्ट, आदर, मान सम्मान, भय उत्पन्न होगा. हमेशा ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है. जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, गॉड इज वर्ड, वर्ड इज गॉड. सो जो वचन को तुच्छ जानेगा वो नाश हो जाएगा, लेकिन जो वचन को मानेगा, आदर करेगा, कल्याण पाएगा. वी शुड नो आवर गॉड. आवर गॉड इज होली. व्हाट बाइबल से, बाइबल में ऐसा जिक्र है, जो मेरे समीप आए अवश्य है वो मुझे पवित्र जान के सबके सामने मेरी महिमा करे. बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 6, 7, 8 सेज, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है. वॉट एवर यू विल सो यू विल रीप. परमेश्वर को ठट्ठे में नहीं उड़ाया जाता, मजाक में नहीं उड़ा सकते. यस, इट सेज डू नॉट बी डिसीव्ड. गॉड इज नॉट मॉक्ड, फॉर वॉट एवर वन सोज दैट विल ही ऑल्सो रीप. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. So जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे.
most of the believer, they say we fear the Lord, and they don't know the meaning, even the fear of the Lord. When they want to get married, so many times people are saying to me, because I am doing the evangelist work, going here and there, they come to me and they say, brother, if you find any boy for my daughter or my son, you find any daughter, tell us. And I also used to say, what type of family you are seeking? And they said, oh, padha likha ho, achhi naukri ho, but brother, one thing is more important. I said, what? The family should be God-fearing family. They don't know even what is the God-fearing family, but they want God-fearing family. Inside my heart, I said, get married. After marriage, you can know how they are fearing the Lord. How much is the God-fearing people? How can you know? आप कैसे जानेंगे कि ये परिवार, ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है? How you know particular person is God-fearing? जानना चाहेंगे? तो मेरे साथ बाइबल खोलें या फिर आप अपने उसमें नोट करें, साम 34, भजन संहिता 34वां अध्याय और उसका 11 से 14 पद हम लोग पढ़ेंगे. साथ में लिख लें, 1 Peter 3rd chapter 10 and 11. Both the places it is written the answer. अगर आपके अंदर ये 3 बातें हैं तो आप जान जाएंगे कि ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है. If you see, if you your assessment, you can value yourself. If you see these 3 things are in you, then you are a person of the God-fearing. Otherwise, you are a stumbling block for others. You are a hypocrite. आप कपटी हैं फिर. सो 3 ये बातों के द्वारा आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, जान सकते हैं क्या कि ये व्यक्ति या मैं परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हूं या फिर नहीं हूं. तो भजन संहिता से हम पहले पढ़ते हैं. वहां पर लिखा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा. अगर आप परमेश्वर का भय मानना सीखना चाहते हैं तो वो कह रहा है मेरे पास आओ. वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे. तो हर व्यक्ति भलाई देखना चाहता है, हर व्यक्ति लंबी उम्र चाहता है, हर व्यक्ति जीने की इच्छा चाहता है. अस्पताल में मरता हुआ व्यक्ति से भी पूछो तो वो चाहेगा हाँ मुझे और जीना है. Come, O children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. What man is there who desires life and loves many days that he may see good? So there is, the first point is written, keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. वहां लिखा है पहला पॉइंट, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले. सेकंड पॉइंट, इट इज रिटन, टर्न अवे फ्रॉम द इवल एंड डू गुड. बुराई को छोड़ और भलाई कर. सुन रहे हैं? तीसरी बात लिखी है, सीक पीस एंड परस्यू इट. मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर. बड़ी अच्छे तरीके से नए नियम में पतरस भाई लिखते हैं 3 अध्याय 10-11 में. वहां लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है. 6-7 साल से हमारे साथ धोखा किया जा रहा है.
हमें अच्छे दिन दिखाने का ख्वाब दिखाया जा रहा है और 7 साल से तो हम देख नहीं पाए, क्योंकि ये मनुष्य अपने तरीके से दिखाना चाहता है अच्छे दिन, वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन धन्यवाद हो हमारे प्रभु जी के वचन के लिए। परमेश्वर ने, हमारे प्रभु जी ने पहले ही लिखित में दे दिया है, अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो। हेलो, जो संसार नहीं दे सका, प्रभु जी कहते हैं मैं दे दूंगा। अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, whoever desire to love life and see good days, इसका आंसर संसार में नहीं मिलेगा, किसी नेता अभिनेता के पास नहीं मिलेगा, लेकिन इसका आंसर प्रभु जी के पास है। सो स्माइल, आपको प्रभु जी आंसर दे रहे हैं। अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अगर 3 बातें हैं वो तुम्हारे अंदर आ जाएं या तुम उसे करो तो तुम अच्छे दिन देख सकते हो। क्या? फर्स्ट थिंग, लेट हिम कीप हिज टंग फ्रॉम इवल एंड हिज लिप्स फ्रॉम स्पीकिंग डिसीट। वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। फर्स्ट थिंग, यू हैव टू केयर अबाउट योर टंग। परमेश्वर ने 32 स्वर्गदूतों के पहरे में इस जुबान को रखा है। हाउ प्रेशियस इज इट। सेकेंड थिंग लिखी है, वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। लेट हिम टर्न अवे फ्रॉम इवल एंड डू गुड। एंड थर्ड थिंग लिखी है, लेट हिम सीक पीस एंड परस्यू इट। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। सम पीपल टॉक वेरी वेल इन द पब्लिक, but in privately, in their own house, see how they are speaking, how you speak with the opposite sex, how you talk. Some talk jokes, some talk in a double meaning, cutting others, hurting others, self-boosting. कई लोग अपनी बड़ाई में ही लगे रहते हैं। बाइबल टीचेस अस स्पीक राइट। व्हाई? बिकॉज मैन विल बी जज्ड बाय द वर्ड ऑफ हिज माउथ। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन और उसके 6 अध्याय के 2 पद में, तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा जाएगा। यू आर स्नेयर्ड इन द वर्ड्स ऑफ योर माउथ, कॉट इन द वर्ड्स ऑफ योर माउथ। इवन जीसस ने भी बोला, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36 एंड 37, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. So be careful with your words, how you are speaking. Always talk in the line with the word of God. याकूब कहते हैं अपने 3 अध्याय के 2 पद में, जो वचन में चूक नहीं करता वही तो सिद्ध व्यक्ति है। वही सिद्ध व्यक्ति है। चापलूसी होठों व बड़े बोल बोलने वाली जीभ को वो काट देगा। भजन संहिता 12 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। May the Lord cut off all flattering lips
the tongue that makes great boast. So be careful, very wisely use your tongue. Dedicate your tongue to the Holy Spirit. Don't be all the time All India Radio. आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं, नीति वचन 12 अध्याय उसके 22 पद में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं अक्सर याद करवा देता हूं। बोलो 12-22। वहां लिखा है कि परमेश्वर जो उनसे जो विश्वास से काम करते हैं उनसे प्रसन्न होता है, लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं उनसे वो घृणा करता है। इट इज रिटन देयर, झूठों से वो घृणा करता है। 12-22 झूठों से यहोवा घृणा करता है, विश्वास से काम करने वाले से प्रसन्न होता है। Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight. 13 अध्याय 3 पद में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। Whoever guards his mouth preserve his life. 16 अध्याय 21 पद, वहां पर लिखा है, Praise the name of Jesus. 16 verse 21. ओ राला बस, मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। The sweetness of speech increases persuasiveness. 16 अध्याय 24वां पद, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। Gracious words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the body. आपसे प्रकाशन की बात करूं, थोड़ी गहराई में चलें। बाइबल समझाती है कि हमारा युद्ध जो है एक्चुअली वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर और शैतान दुष्ट में युद्ध है, गॉड एंड डेवल। लेकिन गॉड भी हमें इस्तेमाल करेगा और डेवल भी हमें इस्तेमाल करेगा। हाउ दिस बैटल इज गोइंग ऑन, इसमें हमारी शरीर का जुबान रूपी अंग को इस्तेमाल करेगा। आप इसी जुबान से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, इसी जुबान से परमेश्वर को लज्जित कर सकते हैं। तो शैतान आपको इस्तेमाल करेगा और आपकी जुबान के द्वारा ऐसी बातें पीछ पीछे सामने फोन पर करेगा कि जिसको सुनकर परमेश्वर का आत्मा दुखी होगा, लज्जित हो जाएगा। आपको मालूम, जब पहली बार पवित्र आत्मा आया उसने लोगों की जुबान को वश में किया। यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर गए और जंगल में गए तो शैतान ने उनकी जब परीक्षा की, यीशु ने इसी जुबान के द्वारा ही ओवरकम किया। हेलो, उसने परमेश्वर के वचनों को अपनी जुबान से बोला, तो अपनी जुबान के द्वारा उसने शैतान को लज्जित किया। और बाइबल कहती है कि फिर शैतान उसके पास से चला गया। सो फर्स्ट थिंग यू कैन चेक whether you are God fearing or not is your words. आप एक सेंटेंस बोलें, मैं बता दूंगा आप कितना परमेश्वर का भय आपके अंदर है। एक तरफ एक दिन पहले आप कहेंगे तू परमेश्वर का जन है, तुझ पर पवित्र आत्मा है, तू पवित्र आत्मा से भरा है। दूसरे ही दिन जरा सा कुछ बात आपके फेवरेबल नहीं हुई तो आप कहेंगे तू तो यहूदा है। What is this? Don't have this type of attitude. आपकी बोली आपका भेद खोल देगी। मैं आपको समझा रहा हूं, आपकी बोली आपका भेद खोल देगी।
दाऊद ने प्रार्थना करी भजन 120 में, और उसने कहा कि प्रभु मेरी सुन, कि झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। जो लोग छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको मुझसे अलग कर दे। मैं उनके संग नहीं रहना चाहता। इसी 52 अध्याय भजन संहिता 52 के अंदर लिखा है, अगर आप 2 पद से 7 पद तक पढ़ जाएं आपको मालूम पड़ेगा। वहां लिखा है कि जीव केवल दुष्टता गढ़ती है, सान धरे हुए उस्तरे के समान वो छल का काम करती है, भलाई से बढ़कर बुराई में रहती है, धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखती है। ऐ छली जीव, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वो तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब 6 और 7वें पद में लिखा है, तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे, तब उनमें भय आएगा। जब आप राइट स्पीकिंग करते हैं, वचन के अनुसार बोलते हैं, सुनने वाले पे अनुग्रह आता है और परमेश्वर का भय उन पे छा जाता है। तब वो लोग ये कहेंगे, देखो ये पुरुष जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना। तो जो लोग वचनानुसार नहीं बोलते, जो अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी जुबान से बुराई, निंदा, झूठ, धोखे की बात बोलते हैं, वो लोग होते हैं जिनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं होता, जो परमेश्वर को अपनी शरण नहीं मानते। सिंपल आप इससे जज कर सकते हैं कि ये आदमी परमेश्वर की शरण में है या नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता है, उसके अंदर घमंड होगा, वो मनी माइंडेड होगा, जब बात करेगा मनी की करेगा। पैसा पैसा पैसा, उसने परमेश्वर की जगह पैसे को वो अपना परमेश्वर बना लेता है। अन्य जातियां कहती हैं पैसे को चूम के रखेंगे। कौन है ये? लक्ष्मी देवी है उसकी पूजा करते हैं लोग। हाँ, सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पहला चिन्ह यह है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आपकी जुबान आपके वश में होगी, आपकी स्पीकिंग राइट होगी। आप डेली प्रभु यीशु के लहू से अपनी जुबान को धोकर पवित्र आत्मा को समर्पित करते होंगे और आप कहते होंगे कि पवित्र आत्मा आप मेरी जुबान इस्तेमाल करें, मुझ में होकर बोलें। इससे अच्छा है कि आप कुछ भी ना बोलें, अपनी हानि सह लें, बदनामी सह लें। कोई आपकी निंदा बुराई करे, आप चुप हो जाएं, अपनी सफाई में कुछ ना कहें। लेट द होली स्पिरिट कन्विक्ट हिम, लेट द होली स्पिरिट हैंडल द सिचुएशन। Whenever you speak the right word on the line of the word of God. Second point, जल्दी से देखेंगे, hate evil and do good. Live right and don't be neutral. हमें क्या करना है? बुराई से घृणा करनी है और भलाई का काम करना है। याकूब कहते हैं, याकूब फिर आ जाते हैं हर बार। याकूब कहते हैं 4 अध्याय के 17 पद में, यदि कोई भलाई करना जानता है और वो भलाई नहीं करता तो ये इसके लिए पाप है। सुन रहे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। यदि आप भलाई करना जानते हैं और आप नहीं कर रहे तो ये आपके लिए पाप है। तो आप न्यूट्रल ना बने, अरे भाई ना तो हम इधर हैं ना मैं उधर हूं, ऐसा कभी ना कहें। जो हो रहा है होने दो, ना तो मैं बुराई की तरफ हूं ना मैं अच्छाई की तरफ हूं। नो 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 नो। बाइबल स्ट्रेटवे से हेट इविल, बुराई से दूर रहें, उससे घृणा करें, लेकिन भलाई करते रहें। भलाई करना बंद ना करें, भलाई करना जरूरी है। नीति वचन 17 अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा है,
नीति वचन 17 अध्याय 13 पद, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर नहीं होगी। सुनिए कितनी गहरी बात लिखी है। आज कई लोगों के घर में बुराई ही बुराई मिलती है। आप उनके घर में 10 मिनट बैठ नहीं सकते, आपस में उनका यह हालत है। अन्य जाति की तो बात छोड़ दो, कई क्रिश्चियनों के घर में है वो प्रार्थना करवाते रहते हैं, रिजल्ट आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन कह रहा है जो भलाई के बदले बुराई करे। आपके पास है और आप देना नहीं चाहते। कोई आपके घर आ जाता है, वो आपसे कुछ मांगना चाहता है। बाइबल कहती है नीति वचन 3 अध्याय उसके 27 और 28 पद में, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझमें शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ये मत कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। चक्कर मत लगवाना हम लोग ये सब कराते हैं। सुन रहे हैं? प्रभु जी कह रहे हैं ये बात, डू नॉट विदहोल्ड गुड फ्रॉम दोज whom it is due when it is in your power to do, when it is in your hand to do, do it. Do not say to your neighbor, go and come again, tomorrow I will give it, when you have it with you. Don't say this thing this time. ऐसा आपका एटीट्यूड व्यवहार नहीं होना है। अगर आप ऐसा व्यवहार रखेंगे तो बाइबल कहती है इफ एनीवन रिटर्न्स evil for good, evil will not be depart from his house. वो हाउस चाहे आपका खुद का शरीर ही क्यों ना हो, घर क्यों ना हो, आपके घर से बुराई दूर नहीं होगी। तो आप अपने आप को ये ना कहें ना मैं ठंडा हूं ना मैं गर्म हूं। यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य 3:16 में, मैं तुझे उगल देने पर हूं। अगर आप का ये एटीट्यूड है neither I am cold and neither I am hot, it is dangerous thing. It is dangerous thing. क्योंकि तुम अपने आप को कह रहे हो मैं गुनगुना हूं, ना ठंडा ना गर्म हूं। तो प्रभु यीशु कहते हैं जी मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, वॉमिट कर दूंगा यानी निकाल दूंगा। So hate evil because my daddy is hating the evil, that's why I will hate the evil. My daddy is doing good, that's why I will do good. So hate evil and do good. Second sign आप देख सकते हैं, अगर किसी में परमेश्वर का भय होगा तो वो भलाई करेगा, बुराई नहीं करेगा। अगर आप उसके लिए बुरा भी कर देंगे इसके बावजूद वो आपकी भलाई करेगा। अगर आप उसकी बदनामी करेंगे, निंदा बुराई करेंगे, तब भी वो आपके लिए दुआ करेगा। और अगर वो दुआ करता है तो ऐसा करके वो आपके सर पे अंगारे रख देगा। एंड थर्ड थिंग, सीक पीस एंड गो फॉर इट। आप चेक करें अपने आप को कि आप अंदर से पीस मेकर हैं या ट्रबल मेकर हैं। कई लोग ट्रबल मेकर होते हैं, हर बात में उनको लोग अपने संग ले जाना भी पसंद नहीं करते। मालूम वाई? कि दे आर द ट्रबल मेकर। या बाइबल कहती है सीक पीस एंड परसू इट, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। तीसरी बात आप अपने अंदर देखें, क्या आप शांति कायम करने वाले व्यक्ति हैं या समस्या खड़े करने वाले व्यक्ति हैं? समाधान लाने वाले व्यक्ति हैं या समस्या को जन्म देने वाले व्यक्ति हैं? ये आपका स्वभाव, आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है और आपके अंदर से पवित्र आत्मा मैनिफेस्ट कर रहा है और भय का आत्मा है, भय प्रभु का भय मानते हो, तो तुम शांति कायम करने वाले व्यक्ति होगे, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करने वाले नहीं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दास को
कोमल स्वभाव का होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और शिक्षा देने में काबिल होना है, सक्षम होना है, उसे शिक्षा में निपुण होना चाहिए। बाइबल में ये वर्ड यूज किया हुआ है। सो ये 3 बातें हैं, इनके जरिए आप जान सकते हैं कि आप पीस मेकर हैं या नहीं है। आप जान सकते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का भय है कि नहीं है। यीशु मसीह जब आए, उन्होंने पहाड़ी उपदेश जब दिया तो उन्होंने 5 अध्याय के 9वें पद में कहा, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आपको मालूम मती 1:18 में पवित्र आत्मा मरियम और यूसुफ के बीच आ गया। यूसुफ मरियम को त्यागने का विचार कर रहे थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो उसने सारी सिचुएशन बदल दी, दोनों में मेल मिलाप करवा दिया। तो अगर आप आत्मा से भरे हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रकटीकरण कर रहा है, तो 7वां प्रकटीकरण परमेश्वर की भय की आत्मा में आप मूव करेंगे। जब आप परमेश्वर की आत्मा में मूव करते हैं तो आप वो व्यक्ति होते हैं जो मेल मिलाप का पीछा करते हैं, जो शांति कायम करते हैं, लोगों के बीच में काउंसलिंग इस प्रकार करेंगे कि सारी बातें भलाई को उत्पन्न करें, सब कुछ भला हो, हर एक का भला हो, मेल मिलाप और शांति के साथ लोग रहें। यीशु मसीह जब मरकर जी उठे तो जिस किसी ने यीशु को, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को देखा, रेजरेक्टेड लॉर्ड को देखा, वो उसके आगे झुका अर्थात वर्शिप की। यीशु के मुख से शब्द निकला, पीस बी अनटू यू, मेरी शांति तुम पर आए। जाने से पहले भी कह गए, मैं अपनी शांति तुम्हें देकर जाता हूं, संसार उसे नहीं जानता। संसार वाली शांति नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, वो तुम्हारे दिलों पर राज करेगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी का वचन कहता है कि फिलिपियों 4:6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के द्वारा पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कब परमेश्वर की शांति आएगी? ये वाली शांति जब हम धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख सब निवेदन, प्रार्थना, विनती रख देंगे और किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। सो डोंट बी स्मार्ट, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। अगर कोई बात ऐसी है तो आप वो चिंता अपने ऊपर न लें, प्रभु जी के चरणों में रख दें और उस विषय को, उस प्रार्थना, विनती, निवेदन को धन्यवाद के साथ रखें। किसी भी बात की चिंता न करें। प्रभु जी की शांति आपके दिलो दिमाग पर राज करेगी। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। राबालीना हकबरेद लीन हकबरो सुखरीद लेहे बेनीवेरा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं क्या चीज आपको बताना मांग रहा था कि परमेश्वर का भय मानने से जब वो पवित्र आत्मा मैनिफेस्ट करेगी प्रभु के भय को, तो उसकी पहचान ये होगी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप परमेश्वर के भय में रहने लगते हैं तो फिर उसके आज्ञाकारी बन जाते हैं। आपके अंदर परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता बढ़ने लगती है।
और जब आज्ञाकारिता बढ़ती है तो बहुत सी आशीषें आती हैं। मैंने बताया था सभोपदेशक 12 अध्याय से उसके 13वें वचन से कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? केवल ये कि वो परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञा पर चले। आमेन, आमेन एंड आमेन। अभी आप हेडिंग डालें, मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में दूं क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके आत्मिक सफर में। यस, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है बेदारी आए मेरे घर में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे चर्च में। हर व्यक्ति के दिल की इच्छा है कि मैं प्रभु से मिलूं, प्रभु आए, मैं उन्हें देखना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। लेकिन अगर परमेश्वर के इस दर्शन के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपके लिए खतरा हो सकता है, आपके लिए नुकसान हो सकता है। We are saying, God come, God send your revival. If God come and we are not giving respect, then it is harmful for us. If we are not giving reverence, not giving proper fear, then it is harmful for us. Sometime God not visit because God knows if I visit, many will die. That's why he is not coming. He loves so much. God know if I come and you don't have love, respect, fear for me, then it is harmful for you. You will die even. So परमेश्वर इतना प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते तुम्हारा नुकसान हो, तुम नाश हो, मर जाओ। तो वो मौके पर मौका देते हैं कि आप अपने आप को तैयार करें, आप अपने आप को इस लायक बनाएं, मेरा रेस्पेक्ट, मुझसे प्यार करना, मेरा भय मानना आपके अंदर आए, ताकि जब मैं आऊं, जब मेरा मूव स्टार्ट हो तो आप उस रेस्पेक्ट में, उस रेवरेंस में खड़े हो सकें। दैट्स द रीजन। सो अपने अंदर इस बात को जन्म, राइट डाउन द हेडिंग, ब्लेसिंग्स फॉर दोज हु फियर द लॉर्ड। मैं शॉर्ट में बोलूंगा, मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाने जा रहा हूं, आप नोट कर लें और फिर अपने खाली समय में बाइबल से पढ़ें। मैं सारी आयतों को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, जस्ट आई एम गिविंग सम पॉइंट्स। Hebrew 5:7 we have already seen कि Jesus prayer is answered because of his godly fear. He fear God. So when you fear God, your prayer will be answered. यीशु ने भक्ति के साथ दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा, परमेश्वर के भय में रह के, इसलिए उनकी प्रार्थना का उत्तर आया है। तो fear God able us to build the house also. जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो उनका घर बनेगा। मूसा के निर्गमन में जो दाई थी, जो लोग बुद्धिमानी से काम कर रही थी, उन्होंने बच्चों को बचाने की कोशिश की, बाइबल में लिखा उन दाइयों के घर बन गए। तो कैसे हुआ? बाय द फियर ऑफ द लॉर्ड। सभोपदेशक 12-13, एक्लेसियस हमने 12-13 पढ़ा है। ऑल दैट इज रिक्वायर इज फियर ऑफ द लॉर्ड। Psalm 31 verse 19, great goodness will come who fear the Lord. Psalm 34:7, angels around them who fear the Lord. Psalm 34:9,
no lack, no wants who fear the Lord. Psalm 33:18. Eyes are upon those who fear God. जो परमेश्वर का भय मानते हैं उन पर परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनको किसी चीज की घटी नहीं होती। स्वर्गदूत उनको घेरे रहते हैं, हमेशा वो आनंद की बातें सुनते हैं। Psalm 103:11. God's mercy will come upon those who fear the Lord. Psalm 115:11. God will helper and shield. परमेश्वर उनका सहायक और उनकी ढाल बन जाता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। 145:19. Who fear the Lord, Lord fulfill their desire. आप चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो जाए, मन की उमंग पूरी हो, तो आप परमेश्वर का भय मानने लगें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। नीति वचन 9 अध्याय 10 और 11, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 10 and 11। वहां पर ऐसा लिखा है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम and the knowledge of the Holy One is insight. For by me your days will be multiplied and years will be added to your life. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे ही द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी, तेरे जीवन के वर्ष अधिक हो जाएंगे। जब आप प्रभु का भय मानेंगे तो आपको बुद्धि प्राप्त होगी। एक और बड़ी अच्छा वचन है प्रोवर्ब्स 19:23, क्योंकि हम सबको बुद्धि की बहुत जरूरत है और ये मिलेगी ही तब जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे। भय में रहेंगे तो बड़ी आशीष होगी। कल मैं आपको कुछ प्रकाशन में लेके चलूंगा। मुझे लग रहा है कि कल मैं इसी चीज को और टीच करूं और मैं थोड़ा मैच्योर बात करूंगा, राइट? आपको बड़ी आशीष उससे मिलेगी। प्रोवर्ब्स 19:23 सेज, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। द फियर ऑफ द लॉर्ड लीड्स टू लाइफ एंड whoever means whoever has it rest satisfied, he will not be visited by harm. सो परमेश्वर का भय मानने से ये बेनिफिट होगा। वन मोर वर्स 22:4, प्रोवर्ब्स 22:4, इसे रट लेना, बहुत मजेदार है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, इफ यू आर हम्बल एंड इफ यू आर फियरिंग द लॉर्ड, देन 3 ब्लेसिंग, धन, महिमा और जीवन होता है। The reward for humility and fear of the Lord is riches, honor and life. लो, और क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल गया, धन भी मिल गया, महिमा भी मिल गई, जीवन भी मिल गया। अब तो मुस्कुराओ। मिलेगा कब? जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे। आमीन, आमीन। एक और मैं आयत दूं आपको, जिनका परिवार है, जो लोग मैरिड हैं, स्पेशली जो न्यूली मैरिड हैं, और वो भी जो लोग मैरिज करने जा रहे हैं। सी क्या आशीष दी प्रभु ने, मजा आ जाएगा। Psalm 128. If you are a newly married or planning to be married,
it will be very helpful to you. It is timely word. Thank you, Holy Spirit, you are releasing this word. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. देखा आपने, जैसे ही आप भय की बात आई, आप प्रभु के भय में चलते हैं, तो साथ में आ गया मार्गों पर चलना, मीन्स ओबीडियंसी. ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, फियर ऑफ द लॉर्ड एंड ओबीडियंसी. लव द लॉर्ड जीसस एंड द ओबीडियंसी, बोथ आर कमिंग टुगेदर. तो क्या बेनिफिट होगा? फर्स्ट थिंग, ओनली वन थिंग वी हैव टू डू एंड ऑल द ब्लेसिंग्स आर आवर. एक बात हमें करनी है कि यहोवा का भय मानना है, उसके मार्गों पे चलना है. तो लिखा है, तो उसकी कमाई को निश्चय खाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा, तेरी घर के अंदर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर बालक जलपाई के पौधे के अनुसार होंगे. सुन, जो कि यहोवा ऐसे व्यक्ति को आशीष देता है जो उसका भय मानता है, और वरन सियोन से आशीष देता है, और जीवन भर वो यरूशलेम का कुशल देखता रहता है. इतना ही नहीं, वो अपने नाती और पोतों को भी देखने पाता है. सी, लॉन्ग लाइफ, ब्लेसिंग, बच्चों को भी आप देखने पाएंगे, और तो और इज़राइल की शांति आपको मिलेगी. So blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. You shall eat the fruit of the labor of your hand. You shall be blessed and it shall be well with you. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. The Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May you see your children's children. Peace be upon Israel. Amen. Say amen. इतनी आशीषें रखी हैं. Praise the Lord. एक एक्सक्लूसिव आशीष में दूं, ओनली फॉर लेडीज. सब लेडीज खुश हो जाएंगे. देखता हूं कौन मुझे रिस्पांस भेजता है. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 31 चैप्टर 30th वर्स. इन हिंदी से, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी. Charm is deceitful and the beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. हेलो लेडीज, अगर आप लोगों को चाहते हैं कि आपकी प्रशंसा हो, बढ़ाई हो, जो कि हर लेडी चाहती है, तो आप केवल परमेश्वर का भय मानना शुरू करें. आपके घर में भी प्रशंसा होगी, आपका हस्बैंड भी आपको प्रेज करेगा, बच्चे भी प्रेज करेंगे, पड़ोस के लोग भी प्रेज करेंगे, चर्च के लोग भी करेंगे, पास्टर तो झुक झुक के प्रेज करेगा. सो बाहरी ब्यूटीफाई करने से की जरूरत नहीं है. बाहर से अगर आप अपनी स्किन को खूबसूरत करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाइबल कहती है शोभा झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है. लेकिन आप अगर परमेश्वर का भय मानेंगे, जो बातें मैंने आपसे कही, अर्थात आपकी जुबान सही चलेगी. लेडीज की जुबान बहुत चलती है. और अगर आप शांति का पीछा करेंगे, और अगर आप भलाई के काम करेंगे, आपकी प्रशंसा होगी. सो गॉड ब्लेस यू. कल मैं आपको थोड़ा सा डीप लेकर चलूंगा, थोड़ा मैच्योर बात, इस नजरिए से कि जब हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उस नजरिए से फियर ऑफ द लॉर्ड क्या होगा. जिस स्टेज की बात मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में की थी, मैं वहां से ब्लेसिंग में चला गया. एक्चुअली वो स्टेज हमारे दिल के अंदर प्रभु का बनना है, स्टेज ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड.
बहुत मजा आएगा आपको उस प्रकाशन को सीखने और समझने का। सो हम आज का टीचिंग यहीं रोकते हैं और कल हम इसके ऊपर देखेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आप लोगों को कैसे लग रहा है? आज 26 दिन हो गया है। 26 दिन से कुछ फर्क पड़ा आपके जीवन में? क्रिश्चियन लाइफ में फर्क पड़ा? स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ फर्क पड़ा? कुछ नया सीखने को मिला? आपके फेथ का लेवल ऊंचा उठा? प्रार्थना का तरीके में बदलाव आया? आराधना में बदलाव आया या नहीं आया? घुटने के बल बैठना शुरू किया या नहीं किया? भोर में जगना, प्रार्थना शुरू किया नहीं किया? तो ये सारी बातें अब आप ही अपना वैल्यूएशन खुद करेंगे। यहां होते तो मैं चेक करता रहता हैं। आप में से कितने लोग आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं? आज किसी भी टाइम अब जब आप अपनी प्रार्थना करें या रात में प्रार्थना करें, 5 मिनट सब लोग टंग्स में जो प्रेयर कर रहे हैं वो अपनी अपनी प्रार्थना करके वॉइस मैसेज में मुझको भेजें। मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मुझे इंटरप्रेशन का गिफ्ट दे, अनुवाद करने का, ताकि मैं उसे अनुवाद भी कर सकूं। और मैं जानना भी चाहता हूं, आपको ऑब्जर्व करना चाहता हूं कि आप कर भी रहे हैं कि नहीं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द होमवर्क। एटलीस्ट 5 मिनट्स आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है और रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है। प्रभु आपको आशीष दे। एक प्रेयर आप लोगों को सिखानी थी, अपने देश के लिए प्रार्थना करना। वो मैं टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे एक्चुअली। एनीवे, आज का होमवर्क लें। 26th डे में जो आपको वर्स याद करनी है, 1 Corinthians 3:16। बड़ी फेमस वर्ड है, बड़ी अच्छी लगती है, अक्सर संदेश में आ जाती है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16वां पद। वहां पर बाइबल क्या कहती है? क्या तुम नहीं जानते? हेलो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या एक्साइटेड बात कह दी प्रभु ने। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हेलो, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज लिविंग इन यू। वाह, और क्या चाहिए? केवल यही प्रकाशन आप ले लो, सफिशिएंट है। एनीवे, इसको याद कर लीजिएगा। फिर कल हम लोग और देखेंगे 27, 28, 29, 30। ओह, बिल्कुल हम किनारे पे आते जा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग 5 मिनट, आइए हम लोग 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, मेरा ये वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। 2 मिनट प्रार्थना करेंगे आत्मा में। ओ राला बाबा बा शिंदारी दा ले 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 बेशी खोरो दो लो दो बो। धन्यवाद दें आत्मा में। रीबा रबारी दा ला ला बा राना बाशी खोरो हा बाबा। रीदा ले 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 बेशिंदरो दो लो रिब्रेरी का बने है के बिली न हो कोबोरो। शानदारा लाना हंदरी द ले ले बेरे दनी किली ना अकबरा नरा दाली ना अकबरो। Shikiri dalele bebe. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you so much. प्रभु जी, अनुग्रह पे अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा, प्रभु की भय की आत्मा को मेरे अंदर मैनिफेस्ट करें, ताकि मैं प्रभु की आत्मा के चलाए चलूं, प्रभु की भय में जीऊं, प्रभु के वचन का भय मेरे अंदर बना रहे। जब मैं वचन सुनूं, थरथराऊं और कांपूं, ताकि प्रभु आप मेरी ओर दृष्टि करें। प्रभु जी, आपका भय मानना मुझे सुगंध सा भाए। 7 स्पिरिट में से केवल एक स्पिरिट के ऊपर यीशु ने जोड़ दिया और दिखाया और गवाही दी कि प्रभु की आत्मा का भय मानना मुझे सुगंध सा भाता है। होने दे प्रभु। ऑल द 45 स्टूडेंट, दे विल फियर
You, Lord, let the spirit of fear of God manifest upon them, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord, yes, 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 Lord. प्रभु आपके भय में हम चलना सीखने पाए। पवित्र आत्मा हमें सिखा, हमारी सहायता और मदद कर। Holy Spirit, teach us to walk in the fear of the Lord. Thank you, Ralana Hakbari Dali Nibi Shidurudulu Nakhale Nibi Ra 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 Ba 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 Shidurudulu Nahababa Ribele Nahe Keberi Dalana Handari Dale Nibi। प्रभु जी, जो लोग छल कपट की बातें करते हैं, जो अपनी जुबान का मिसयूज करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रभु उनसे मुझे अलग कर दे। दिस इज माई हम्बल प्रेयर लॉर्ड। होली स्पिरिट, do this in my life, Lord. प्रभु जी, मैं अपनी जुबान आपके लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करके पवित्र आत्मा आपको हैंड ओवर करता हूँ। You speak through my tongue. You speak, you preach, you teach, Lord. Thank you, thank you, thank you. In Jesus' mighty name. Amen, amen and amen. और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता इस बैच के साथ युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन।